Good afternoon, students. My name is Yogendra Kumar, lecturer from Department of Mechanical Engineering, University Polytechnic, GLE University, Mathura. Students, today we are discussing about the topic is the strength of a sunk key, in which we will discuss about how can we classify the types of forces which are acting on a sunk key and how can we design the dimension of a sunk key with the help of their strength. So basically, if we are going to describe the function of a sunk key, you know that a sunk key which is mounted between the shaft and the hub, the upper portion, the upper half portion of sunk key will be inserted into the hub, and the lower half section or lower half portion of the sunk key will be inserted into the shaft, like this. You know that, like this. Like this. Here we can see that the upper half portion in half and the lower half portion in shaft. So it means we are going to transmit the torque by means of a shaft to the hub. The key will play a vital role. The key आपका जो होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका शाफ्ट के रोटेशन को या शाफ्ट के टॉर्क को हब तक ट्रांसमिट करने के लिए. Okay, so it means a tangential force will act over it. इस तरीके से है ना. तो according to the analysis of force, we can easily find out the value of torque transmission. It will be equal to torque transmission tau या T will be equal to the tangential force into the radius of shaft. So it will be T equal to F into D by 2. For calculation the dimension of a sunk key, we have to introduce the strength of a key. It means when we are going to transmit the torque by means of a key from shaft to hub, the key will introduce a strength that is known as shear strength, or we can say it will induced by means of a shear stress. ओके, इसमें हमारा क्या होगा, इसमें हमारा जब हम टॉर्क ट्रांसमिट करेंगे शाफ्ट से हब तक, तो जो की होगा उस की के मटेरियल में हमारा जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो होगा हमारा शियर स्ट्रेस, और वो शियर स्ट्रेस जो प्रोड्यूस होगा वो उस पोर्शन पे प्रोड्यूस होगा जो कि आपका कनेक्शन बनाया हुआ है शाफ्ट और हब के बीच में, लाइक हियर दिस सरफेस will be subjected to shear stress. So the strength of key strength of sunk key
in shear will be equal to the force F equal to shear stress in key into shear area. So what will be the shear area during the torque transmission? So it will be like this here. यहां आपका ये सरफेस होगा जो कि shear स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा होगा या जिस पर shear स्ट्रेस काम कर रहा होगा। तो ये shear स्ट्रेस का जो लेयर मैंने इंडिकेट किया वो सिर्फ यहां यही नहीं होगा, वो लास्ट तक होगा, थ्रू आउट द सेक्शन होगा आपका, यहां तक होगा। यहां तक होगा, ठीक है। तो हम यदि इस सरफेस का एरिया फाइंड कर दें तो दिस एरिया विल बी shear एरिया, ये आपका shear एरिया होगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू होगा वेट इनटू लेंथ, वेट इनटू लेंथ, ठीक है। और shear स्ट्रेस जो इसमें प्रोड्यूस हुआ की में आपका उसमें की में वो हमने मान लिया टाउ के। सो इट विल बी टाउ के द shear strength of key material into W into L. So that is the formula for F. Here we can easily find out the value of torque transmission by means of a key from equation first. It will be T equal to tau K into W into L into D by 2। ये हमारा टॉर्क ट्रांसमिशन का फॉर्मूला हो जाएगा शियर स्ट्रेस के लिए। यदि हमें शियर स्ट्रेंथ में या शियर स्ट्रेस की हेल्प से टॉर्क ट्रांसमिशन फाइंड करना है, या शियर स्ट्रेस आपको गिवन है, टॉर्क आपको गिवन है और उसके एरिया की वैल्यू फाइंड करनी है, डायमेंशंस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हियर वी कैन यूज दिस फॉर्मूला T equal to tau K into W into L into D by 2। ओके, इक्वेशन नंबर अगेन इट मे बी पॉसिबल कि हमारा जो की है वो शियर स्ट्रेस के साथ साथ उसमें दूसरा कोई और स्ट्रेस काम करे, तो वो जो होता है वो होता है हमारा क्रशिंग स्ट्रेस। हमारा शियर के साथ साथ होता है कि हमारा की है वो क्रश हो सकता है या तो हब वाले पोर्शन में या शाफ्ट वाले पोर्शन में। दोनों पोर्शन में आपका की कभी क्रश नहीं होगा, वो एक साइड ही क्रश होगा, या तो की वाले पोर्शन में या फिर हब वाले पोर्शन में, ठीक है। तो क्रशिंग के लिए हम जो क्रशिंग एरिया लेंगे दैट विल बी द क्रशिंग एरिया, ये वाला, ये जो होगा आपका एरिया, ये आपका एरिया होगा, ये जो आपका एरिया होगा जो मैं अभी मार्क कर रहा हूं इस तरीके से, ये आपका क्रशिंग एरिया, ठीक है। या तो हम अपर पोर्शन लेंगे या फिर इसका हम लोअर पोर्शन लेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा एरिया होगा इसे बोलेंगे क्रशिंग एरिया, क्रशिंग एरिया, और इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, इसका डेप्थ का या इसका थिकनेस का डिवाइड बाय 2, मतलब आधी थिकनेस तक, और लेंथ कंप्लीट लेंगे, तो T by 2 into L, T by 2 into L, ओके। सो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, देख लेते हैं कहां लिखूंगा इसे, तो crushing strength of a key will be equal to, point number 2, crushing strength of a key will be equal to
F equal to crushing stress into crushing area. So it will be F equal to sigma C into area कौन सा होगा ये वाला T by 2 into L. Again we can easily find out the value of torque transmission by means of equation number 1. So from equation first, again it will be equal to T equal to sigma C into T by 2 into L into D by 2. ये आपका फाइनल वैल्यू हो जाएगा टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय मींस ऑफ क्रशिंग स्ट्रेस. ठीक है, इक्वेशन नंबर बी. कहीं कहीं बुक में इसको क्या कर रखा है, कहीं कहीं बुक में इसको डायरेक्टली फॉर्मूला दिया है कि सिग्मा सी का फॉर्मूला क्या होगा या सिग्मा या टाउ की का फॉर्मूला क्या होगा, वैसे कर रखा है. ठीक है ना, तो हम उसे वैसे भी कर सकते हैं 2d ये 2t अपॉन t इनटू w12 हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं इसे. यदि हम शियर स्ट्रेस की बात करें तो शियर स्ट्रेस हमारा क्या हो जाएगा टाउ k इक्वल टू 2t अपॉन WL into D. WLD. ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है, इससे निकालते हो यदि फॉर क्रशिंग स्ट्रेंथ इट विल बी सिग्मा C इक्वल टू 4t हो जाएगा ये ना, 4t अपॉन ये 40 हो गया अपॉन TL into D. TLT. तो ये भी आपका डायरेक्टली फॉर्मूला के लिए यूज हो जाता है, तो आप इसे भी लिख सकते हैं. फॉर शियर स्ट्रेस एंड फॉर क्रशिंग स्ट्रेस. ठीक है, सो that is a simple way where we can easily find out the value of strength of a key, और हम उसके डायमेंशंस भी फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं. सो थैंक यू क्लास फॉर टुडे. ये आज क्लास में हम लोग इतना ही काफी था हमारे लिए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको कपलिंग के बारे में इंट्रोड्यूस कराएंगे और कपलिंग के डिजाइन के लिए जो प्रोसीजर फॉलो होता है वो समझाएंगे. थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन.